Dear students, today we shall have a discussion on an interesting chapter of science subject of class 3rd, that is birds. First of all, I am grateful to Ratnasagar Private Limited for bringing out a wonderful book of science for class 3rd entitled Science Magic. Since this is a widely prescribed book in a number of schools across the country to help students at a large scale, most contents of this presentation have been taken from this book. Let's begin with the general introduction to birds. We all know that the birds are one of the most beautiful animals on the earth. Do you know that birds are the only animals which have feathers on their body? हाँ बच्चों, बर्ड्स के अलावा कोई और ऐसा एनिमल नहीं है जिसकी बॉडी पर feathers मिलते हों. India is very rich in terms of number of species of birds found here, as we have more than 1,300 species of birds in India. Birds have unique characteristics. For example, a bird has a pair of wings instead of arms. Also, it has a tail. A wings का और tail का function क्या है बच्चों? Wings and tail both help a bird to fly. अब बात करते हैं bird की beak की. A bird has a hard beak that helps it to catch, hold and eat food. बात करते हैं legs की. Birds have two legs to move on land and to perch on trees. अगर हम eyes की बात करें, they have a pair of eyes on either side of the body. Ears की अगर हम बात करें, birds have ear holes on both sides of the head. Ears are not visible as they are hidden under feathers. दिखते नहीं है बाहर से, आपको किसी भी bird के कान दिखाई नहीं देंगे. And if we talk about their position, they are usually positioned just behind and slightly below the eyes. आप देख सकते हैं हमने रेड सर्कल दिया है, ये एक टेंटेटिव लोकेशन है कि बर्ड में ईयर कहाँ होते हैं. नाउ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई ईजिली? बर्ड्स इतनी आसानी से कैसे उड़ पाती हैं? देखो बच्चों, हमको पता है कि बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं. इन्हीं मसल्स और फेदर्स के कॉम्बिनेशन से बर्ड अपने विंग्स को फ्लैप करती हैं और आसानी से उड़ पाती हैं. I just share 3 important features that help birds to fly easily. वो 3 खास बातें जो बर्ड को अच्छी तरह से उड़ने में मदद करती हैं. सबसे पहले, a bird has a boat shaped body. You must have seen a boat. It is thin in the front and back and broad in the middle. इस शेप का फ़ायदा क्या होता है बच्चों? This shape helps the bird to cut through the air easily. इस शेप की वजह से बर्ड आसानी से हवा को चीरती हुई बर्ड आगे बढ़ जाती है. Now, second feature, the bird has a lightweight skeleton. That is, a bird has fewer bones than other animals. हाँ बच्चों, किसी और एनिमल के कंपैरिजन में बर्ड्स के पास जो बोन्स होती हैं उनका नंबर कम होता है. इसका फ़ायदा क्या हुआ? चूँकि बर्ड को ऊपर उड़ना है आसमान में, तो बोन्स का अगर नंबर कम होगा, इट कीप्स इट्स बॉडी लाइट, हल्का रहता है बर्ड का वजन. एंड द थर्ड वन इज होलो बोन्स. A bird has hollow bones. Hollow का मतलब क्या होता है? खोखला, अंदर से खाली. When a bird breathes in, the hollow space gets filled with air. अब इस air का क्या होगा? This air makes the body of the bird light and helps it to fly easily. तो हम कह सकते हैं बच्चों that with the hollow bones, a bird can fly very long distances without getting much tired. ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है. ये 3 एडेप्टेशन या 3 खासियत थी जो बर्ड को आसानी से उड़ने में मदद करती हैं. नाउ एन एडिशनल एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई. हाँ बच्चों, हमको अगर ये लगता है कि बर्ड्स मतलब उड़ने वाले जानवर, उड़ने वाले एनिमल्स, तो ऐसा नहीं है. देयर आर सम बर्ड्स दैट डू नॉट फ्लाई एट ऑल एंड वी कॉल देम फ्लाइट लेस बर्ड्स. पेंगुइन्स, कीवी and ostrich are the examples of flightless birds. अब एक अगला सवाल जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, how does a bird fly? A bird flies by moving its wing up and down. As we mentioned earlier, the wings of the birds are attached with strong muscles of the body. A bird uses mainly 2 types of wing movements. वो 2 मूवमेंट कौन कौन से हैं बच्चों? One is upstroke and the other one is downstroke. इनके नाम से ही बच्चों इनका प्रोसेस हमको पता चल रहा है. द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड अपस्ट्रोक, while the downward movement of wings is called downstroke.
द कॉन्टिन्यूस फ्लैपिंग ऑफ विंग्स मूव द बॉडी ऑफ द बर्ड फॉरवर्ड। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउ डज अ बर्ड चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लाई? उड़ते हुए बर्ड अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करती हैं? इट यूजेज इट्स टेल टू चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट। जो टेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उड़ते समय वो बर्ड का बैलेंस भी मेंटेन करती है और अगर उसको डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसमें भी टेल हेल्प करती है। अब बात करते हैं बच्चों हम फेदर्स की। अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स, पंखों से ढकी रहती है। फेदर्स हैव वेरियस फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल दे कीप द बॉडी ऑफ द बर्ड वार्म, वो बर्ड की बॉडी को गर्म रखते हैं फेदर्स। दे हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई, बर्ड उनसे उड़ पाती है। एंड सम फेदर्स आर कलरफुल एंड दे मेक बर्ड्स लुक ब्यूटीफुल, जो सुंदर लगते हैं ना, हम कहते हैं पैरट कितना सुंदर है, पिकॉक कितना सुंदर है, किंगफिशर कितना प्यारा लग रहा है, तो वो फेदर्स की वजह से ही होता है। अ बर्ड हैज़ मेनली 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स, वो कौन कौन से हो सकते हैं? कॉन्टोर फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स। एक एक करके हम इन फेदर्स को समझते हैं। सबसे पहले बारी आती है कॉन्टोर फेदर्स की। The outermost part of a bird's body is covered with small stiff feathers. We call them contour feathers. जो सबसे बाहर की तरफ बर्ड की बॉडी पे रहते हैं फेदर्स, उनको हम कॉन्टोर फेदर्स कहते हैं। They give the bird its shape and color. जो आपको कोई भी बर्ड ग्रीन कलर की या रेड कलर की दिखती है, इसका मतलब उसके कॉन्टोर फेदर्स कलरफुल हैं। सेकेंड वन इज डाउन फेदर्स। दे आर स्मॉल एंड फ्लफी फेदर्स। दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म। यही वो फेदर्स हैं जो बर्ड की बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्माहट देते हैं। थर्ड वन इज फ्लाइट फेदर्स। दे आर लॉन्ग एंड फ्लैट फेदर्स। आप देखिए इस पिक्चर में हमको दिख रहा है कि ये लॉन्ग भी हैं और फ्लैट भी हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ द बर्ड एंड हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। ये उड़ने में मदद करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं बीक्स की। हिंदी में हम इसको कहते हैं चोंच और हमने ब्रैकेट में लिखा है बिल। देखिए जनरल इंग्लिश में हम कहते हैं बीक, पर जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, जो बर्ड साइंटिस्ट हैं, वो बीक ना कह के बिल यूज़ करते हैं। ये दोनों सेम है। बीक्स जनरल टर्मिनोलॉजी है और जो बिल है वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। हम जानते हैं कि बर्ड्स के पास ना तो हाथ होते हैं ना दांत होते हैं। दैट्स वाई दे यूज देयर बीक टू कैच, होल्ड, टेयर, बाइट एंड क्रश देयर फूड। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ बीक। सवाल उठता है क्यों? बिकॉज ईच स्पीशीज ऑफ द बर्ड हैज़ अ बीक डिजाइंड एज पर द टाइप्स ऑफ फूड इट ईट्स। हाँ, बर्ड कैसा खाना खाती है उसी की तरह से उसकी बीक इवॉल्व हुई है। डू यू नो दैट द वेरिएशन इन द शेप एंड साइज ऑफ बीक मे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फूड बर्ड्स ईट। जो बर्ड साइंटिस्ट हैं वो बर्ड की बीक को देखकर, उसकी बिल को देखकर ये आसानी से गैस कर पाते हैं कि ये बर्ड किस तरह का फूड खाती होगी। वी नो दैट बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल सम ईट फ्रूट्स, grains and seeds while others eat flesh, and according to the food items they eat they have large variations in the shape and size of their beaks. आपकी बुक में 7 टाइप्स की बीक इंक्लूड की हुई हैं, जैसे शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक, कर्व बीक, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक, ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक, स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बीक, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। वी शैल डिस्कस देम वन बाय वन। एक एक करके हम इसको समझते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बीक शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक। बर्ड्स सच एज स्पैरो, पिजन एंड पिकॉक दे ईट ग्रेन्स एंड सीड। अब जो ग्रेन्स और सीड होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, दैट्स वाई दे हैव शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक। इस बीक का क्या फ़ायदा होता है बच्चों? देयर बीक्स हेल्प देम टू क्रश ग्रेन्स एंड सीड्स टू मेक देम सॉफ्ट फॉर ईजी टू स्वेलो। ये हमने शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक की बात की। आपके सिलेबस में सेकेंड टाइप की जो बीक है दैट इज कर्व बीक। एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, दिस टाइप ऑफ बीक हैज कर्व्ड फ्रंट। आप देखेंगे ध्यान से, एज द पिक्चर शोज अ पैराकीट हैज अ स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक। आगे देखो कितना कर्व आया हुआ है इसकी बीक में। इस बीक का क्या फायदा होता है बच्चों? दिस बीक हेल्प्स द पैराकीट्स टू क्रैक ओपन नट्स एंड ईट हार्ड फ्रूट्स। वन मोर फंक्शन, द कर्व्ड बीक हेल्प्स बर्ड टू होल्ड एंड क्लाइंब ट्रीज। हाँ, पैरट आपने देखा होगा, कभी केज में देखा या नेचर में आपने फ्री बर्ड देखी होंगी,
तो पैरट अपनी बीक की भी मदद लेता है पेड़ों के ऊपर चढ़ने में। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ बीक, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक। दिस टाइप ऑफ बीक इज फाउंड इन बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे क्या है बच्चों? बर्ड्स ऑफ प्रे आर द बर्ड्स दैट हंट एंड फीड ऑन अदर एनिमल्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ध्यान से सुनिए कि बर्ड्स ऑफ प्रे क्या होता है। बर्ड्स ऑफ प्रे आर द बर्ड्स दैट हंट एंड फीड ऑन अदर एनिमल्स। ऐसी बर्ड्स जो दूसरे छोटे एनिमल्स को हंट करती हैं, उनको खाती हैं, उनको हम बर्ड्स ऑफ प्रे कहते हैं, जैसे हॉक, आउल और वल्चर्स। These birds have strong and sharp hook beaks। आप देखो इस पिक्चर में हमने दिखाया है, बीक बिल्कुल हुक की तरह होती है। Why beak is hooked? Hook beak help them to tear at the flesh of animals। होता क्या है बच्चों? Actually these birds often capture animals larger than they can swallow। Therefore they use their beak to rip prey into small and manageable size pieces। एक बड़े साइज का अगर इन्होंने प्रे पकड़ लिया, एक बड़े साइज का इन्होंने अपना फूड आइटम कोई एनिमल पकड़ लिया, अब ये एक साथ तो एक बार में उसको स्वेलो नहीं कर सकते, तो ये अपनी बीक से उसके छोटे छोटे पीसीस काटते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो इसलिए हुक्ड बीक इनकी फूड आइटम को खाने में मदद करती है। नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। आप पिक्चर जो देख रहे हैं बच्चों, ये एक स्वेलो है। स्वेलो को हिंदी में हम अबाबील बोलते हैं। ये हवा में उड़ती रहती है बर्ड। जनरली ये बैठना बहुत कम पसंद करती है और ये उड़ते उड़ते ही अपना खाना खाती है। तो उड़ते उड़ते कैसे खाना खाया जा सकता है? एक्चुअली ये इंसेक्टिवोर बर्ड है। ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती है, वो छोटे छोटे इंसेक्ट जो हवा में उड़ते रहते हैं। इसमें इसकी ये बीक इसकी बहुत मदद करती है। इट्स बीक इज स्टिकी ऑन द इनसाइड। अंदर से इसकी बीक जो होती है बड़ी स्टिकी होती है। व्हेन द स्वेलो मूव्स इन द एयर विद इट्स माउथ ओपन, मुंह खोल के उड़ती है हवा में, तो टाइनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स गेट स्टक इनसाइड इट्स माउथ। वो छोटे छोटे इंसेक्ट इसके मुंह में अंदर की तरह चिपक जाते हैं। नाउ नेक्स्ट बीक, स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बीक। चीजल का मतलब होता है बच्चों छेनी। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली कारपेंटर्स यूज़ करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसका पिक्चर दिया हुआ है और आप गूगल पर भी देख सकते हैं कि छेनी दिखने में कैसी होती है। सच टाइप्स ऑफ बीक आर फाउंड इन वुड पैकर्स। हमने पिक्चर दी है वुड पैकर की, आप इसकी बीक ध्यान से देखिए। वुड पैकर की एक खासियत क्या है कि ये जो ट्री ट्रंक होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके ऊपर ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगातार चलता रहता है। और जो ट्री की बार्क है, छाल है, जो आउटर पोर्शन है, उसके अंदर छुपे हुए इंसेक्ट्स को ढूंढ ढूंढ के अपनी बीक से बाहर की तरफ निकाल कर उनको खा लेता है। और एक दूसरी खास बात क्या है बच्चों इसकी, वुडपेकर्स नेस्ट इन ट्री कैविटीज दे एक्सकेवेट। एक्सकेवेट का मतलब क्या होता है? ये अपनी बिल से, अपनी चोंच से जो ट्री ट्रंक है उसको खट 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 करके ऐसे एक बड़ा सा छेद बना लेते हैं। सोचो ना कितनी ताकतवर होती होगी इनकी बीक कि इतने मजबूत ट्री के जो ट्रंक है, जो तना है, उसके अंदर एक होल कर लेते हैं और उसके अंदर ये फिर रहते हैं और इनके बच्चे रहते हैं। तो इस काम के लिए तो एक मजबूत बीक चाहिए, इसीलिए जो चीजल शेप्ड बीक है वही दोनों काम कर लेती है। इनकी जो बीक होती है दैट इज वेल अडेप्टेड टू सर्व ऑल दीज पर्पसेस वेल एंड अलाउ वुडपेकर्स टू सर्वाइव इन एन एफिशिएंट मैनर। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों ब्रॉड एंड फ्लैट बीक की। ये भी आपके सिलेबस में है। वाटर बर्ड्स होती हैं जैसे डक्स, दे हैव फ्लैट एंड ब्रॉड बीक्स। देयर बीक्स हैव अ कॉम लाइक एजेस ऑन द साइड। जो बीक के किनारे होते हैं, साइड्स होते हैं, उनमें कॉम जैसी स्ट्रक्चर होती है। वो कॉम जिससे हम घर में अपने कंघा करते हैं ना, वैसी स्ट्रक्चर होती है बीक्स की साइड में। अब होता क्या है, ये बर्ड स्मॉल इंसेक्ट्स या स्मॉल वाटर जो एनिमल्स हैं उन पर फीड करती है, और जब ये झट से उन एनिमल्स को पकड़ती है तो उस इंसेक्ट के साथ साथ इसके मुंह में छोटे छोटे प्लांट्स या जो मड है, मिट्टी, वो सब आ जाता है, वाटर भी आ जाता है। फिर धीरे धीरे जो ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है साइड में, इसमें से मड और वाटर और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो छनकर बाहर बह जाता है, और फिर मुंह में क्या रह जाता है? फूड। जो इसका मेन फूड था, इंसेक्ट या कोई स्मॉल फिश थी, वो इसके मुंह में रह जाती है। बाकी सारा आइटम जो इसके लिए ज़रूरी नहीं है दैट फ्लोज आउट। अब हम बात करते हैं बच्चों लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक की। बर्ड्स सच एज हुपू एंड सन बर्ड, दे हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। बच्चों हमने इस पिक्चर में हुपू की इमेज दिखाई है। आप देखिए, द बीक ऑफ हुपू हेल्प्स इट टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड। ये बर्ड क्या करती है? ज़मीन पर धीरे धीरे चलती रहती है और मिट्टी में अपनी चोंच अंदर की तरफ धंसाकर
ज़मीन के अंदर से कीड़े निकाल कर खाती है। ये अलग तरह के इंसेक्ट्स को पसंद करती है और उसमें इसकी बीक बहुत हेल्पफुल रहती है, ज़मीन में काफ़ी गहराई तक अंदर चली जाती है। साथ ही साथ ये बीक बच्चों सनबर्ड और हमिंग बर्ड्स में भी मिलती है। हमिंग बर्ड तो हमारे इंडिया में नहीं मिलती, पर सनबर्ड मिलती हैं। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि सनबर्ड कैसी दिखती है। उसकी बीक भी बड़ी ऐसी लंबी होती है। सनबर्ड और हमिंग बर्ड नेक्टर्स को फीड करती हैं, जो फूलों के अंदर रस होता है नेक्टर, उसको खाती हैं। तो लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक ऑफ सनबर्ड हेल्प्स इट टू सक नेक्टर फ्रॉम दी फ्लावर्स। तो ये हमने बीक्स के बारे में समझा बच्चों। अब बात आती है टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज। बर्ड्स हैव 2 legs टू मूव अराउंड। 2 पैर होते हैं बर्ड्स के पास, ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। मोस्ट बर्ड्स हैव 4 toes इन ईच फुट। आप देखिए एक पैर के अंदर 4 toes होते हैं। आप पिक्चर साथ साथ देखिएगा। ईच टो हैज कर्व्ड एंड पॉइंटेड क्लॉ एट इट्स एंड। ध्यान से देखिए कितने पॉइंटेड क्लॉ आपको दिखाई दे रहे हैं, नाखून जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। बर्ड्स यूज देयर फीट एंड क्लॉज टू मूव, कैच फूड, होल्ड ऑन टू ब्रांचेस एंड फाइट देयर एनिमीज। Birds have different types of feet and claws that suits and depends on their living condition. जैसे बीक्स बच्चों अलग अलग तरह की थी ना, इसी तरह से फीट एंड क्लॉज भी बर्ड के अलग अलग तरह के होते हैं। वन बाय वन हम उनको समझते हैं। सबसे पहला टर्न आता है पर्चिंग बर्ड्स का। पर्चिंग कौन सी बर्ड्स होती हैं बच्चों? जो ट्रीज के ऊपर या वायर्स के ऊपर आपने देखा है, उनको पकड़ कर बैठती हैं। बर्ड्स सच एज क्रो, स्पैरो, मैना, बुलबुल एंड पिजन, दे सिट ऑन ब्रांचेस। उनका ब्रांचेस पर इस तरह से पकड़कर बैठना ही पर्चिंग कहलाता है। तो पर्चिंग बर्ड्स हैव 4 toes इन ईच फुट। आप देखेंगे इसमें 4 toes दिखाई गई हैं। और अगर हम उनके अरेंजमेंट की बात करें, वेयर 3 toes फेस फ्रंट पोजिशन वाइल द रिमेनिंग 1 फेसेस एट दी बैक। 3 आगे की तरफ होती हैं और एक पीछे की तरफ। इससे फायदा क्या होता है? देयर टोज ग्रिप दी ब्रांचेस टाइटली लाइक अ लॉक। एक लॉक की तरह ये फिक्स हो जाती हैं उस वायर पर या उस ब्रांच पर। दैट्स वाई सच बर्ड्स डू नॉट फॉल ऑफ इवन व्हेन दे आर स्लीपिंग। रात को सोते हुए भी बर्ड ना ब्रांचेस से गिरती नहीं है, क्योंकि ये पर्चिंग मैकेनिज्म उनकी हेल्प करती है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरी बर्ड्स की, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। इसमें हमने ईगल का एग्जाम्पल लिया है। बर्ड्स सच एज ईगल्स एंड वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलन। देयर टैलेंस हेल्प देम टू कैच स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स एंड टोड्स। आप देखिए इनके जो पंजे हैं, इनको हम टैलेंस बोलते हैं। इसके अंदर ये रैट को, फ्रॉग को, टोड को पकड़ लेते हैं। दीज बर्ड्स होल्ड देयर प्रे बिटवीन देयर टैलेंस वाइल फ्लाइंग। उड़ते उड़ते भी इन टैलन से ये अपने शिकार को उड़ाकर ले जाते हैं। दे ऑल्सो हैव 4 toes इन ईच फुट where 3 toes face front position while the remaining 1 faces at the back। जैसे पर्चिंग बर्ड्स में था, अरेंजमेंट वैसा का वैसा ही है। नाउ वी टॉक अबाउट स्क्रैचिंग बर्ड्स। इसमें हमने हैन की पिक्चर दिखाई है बच्चों। बर्ड्स सच एज हैंस एंड पिकॉक्स हैव हार्ड एंड शार्प क्लॉज। इन क्लॉज की क्या ज़रूरत होती है बर्ड को? जो स्क्रैचिंग बर्ड है बच्चों, वो चलते चलते ना अपने इन क्लॉज से ज़मीन को खुरसते रहते हैं, उनको डिग करते रहते हैं। जब ज़मीन को खुरचा जाता है या खोदा जाता है तो उसके अंदर छुपे हुए इंसेक्ट्स और वॉर्म्स अचानक बाहर आ जाते हैं और बर्ड झट से उनको पकड़कर उनको खा लेती है। इसमें भी आप देखेंगे तो 4 toes हैं, जिसमें 3 toes फ्रंट की तरफ हैं और एक पीछे की तरफ होती है। नाउ वी टॉक अबाउट क्लाइंबिंग बर्ड्स। इसमें बच्चों हम अगेन वुड पैकर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। बर्ड्स सच एज वुड पैकर्स एंड पैराकीट्स, दे आर नोन एज क्लाइंबिंग बर्ड्स। दे ऑल्सो हैव 4 toes बट अरेंज्ड इन अ डिफरेंट वे। आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, जो रेड कलर के सर्कल में है उसके अंदर भी आपको टोज तो 4 ही दिखेंगे, लेकिन अरेंजमेंट अलग है। दे हैव 2 toes पोजिशनिंग फॉरवर्ड एंड रिमेनिंग 2 toes पोजिशनिंग बैकवर्ड। 2 toes आगे की तरफ है और 2 पीछे की तरफ है। इससे फायदा क्या होता है? देयर फीट हेल्प देम टू गेट अ फर्म ग्रिप एंड टू क्लाइम ऑन द ट्रीज। वर्टिकल ये पेड़ पर ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, इनको एक मजबूती मिल जाती है, इनकी पकड़ इस तरह के टोज से बहुत मजबूत हो जाती है। नेक्स्ट इज बच्चों wading बर्ड्स। वाटर बर्ड्स सच एज क्रेन्स एंड हेरॉन्स, दे हैव लॉन्ग लेग्स। बहुत लंबी लंबी इनकी टांगें होती हैं। दे हैव टू वॉक थ्रू मडी वाटर इन ऑर्डर टू कैच फिश और अदर फूड आइटम्स। इसी दलदली ज़मीन पर चलते चलते ये अपना खाना खाते हैं, फिश को पकड़ते हैं या दूसरे स्नेल या दूसरे आइटम्स को लेते हैं। दैट्स वाई दे हैव स्प्रेड आउट टोज। स्प्रेड आउट टोज का मतलब फैले हुए पंजे। इनके जो टोज हैं वो चारों तरफ बहुत फैले हुए होते हैं। उनके फैलने से क्या होता है बच्चों?
ऐसे फैले हुए जो टोज होते हैं दे हेल्प देम टू वॉक एफिशिएंटली थ्रू सॉफ्ट एंड मडी ग्राउंड, मिट्टी दलदल के ऊपर भी ये आसानी से चल पाते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स क्या होती हैं बच्चों? एज द नेम सजेस्ट, स्विमिंग बर्ड्स सच एज swans and different ducks, चाहे वो पिंटेल हो, मलार्ड हो, पोचार्ड हो, they swim in the water and for this they require specially designed feet। अब बात अलग तरह की आ गई, अब हम स्विमिंग बर्ड की बात कर रहे हैं, ऐसी बर्ड जो तैरती हैं और तैरने में उनके क्लॉज, उनके फीट उनकी मदद करते हैं। कैसे? लाइक पर्चिंग एंड स्क्रैचिंग बर्ड्स। इस तरह की बर्ड्स में भी टोज तो 4 ही होते हैं, 3 आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। लेकिन एक खास बात है, आप इस ब्लू सर्कल के अंदर देखिए, जो आगे के 3 टोज हैं ना बच्चों, उनके बीच में एक बहुत थिन स्किन है, एक बहुत पतली सी स्किन, जिसने इन तीनों टोज को आपस में जोड़ा हुआ है। एक स्पेशल फीचर है, जो 3 टोज हैं दे आर जॉइंड बाय अ थिन स्किन टू फॉर्म अ वेब। एक जाल जैसी स्ट्रक्चर हो गई। दीज वेब्ड फीट, इनका फ़ायदा क्या हुआ? जो वेब्ड फीट है ना, दे एक्ट लाइक पैडल्स एंड दे हेल्प देम टू स्विम। इनसे उनको तैरने में मदद मिलती है। तो स्विमिंग बर्ड्स के जो फीट होते हैं, क्लॉज होते हैं, वो बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। बच्चों, हमने बीक की बात कर ली, क्लॉज की बात कर ली, फीट की बात कर ली। नाउ दिस इज द टर्न ऑफ नेस्ट्स। नेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? घोंसला। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, वेयर डू वी लिव? आपका आंसर होगा वी लिव इन आवर होम। हम अपने घर में रहते हैं। जस्ट एज वी बिल्ड हाउसेज, बर्ड्स ऑल्सो बिल्ड देयर लिविंग प्लेस एंड वी कॉल देम नेस्ट्स। हमारे रहने की जगह घर और चिड़िया के रहने की जगह उसका घोंसला। बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट्स। अब उस नेस्ट का फ़ायदा क्या होता है? जो नेस्ट होता है, इट प्रोटेक्ट्स द एग्स एंड यंग वंस फ्रॉम बैड वेदर्स एंड एनिमीज। और बर्ड ना अलग अलग तरह का मटेरियल यूज़ करती है अपने नेस्ट को बनाने में। दे यूज़ ग्रास, ट्विग, लीव, पेपर, स्टिक्स एंड समटाइम्स स्टोन्स टू मेक देयर नेस्ट। और यही नहीं, दे मे ऑल्सो यूज़ पीसीज ऑफ क्लॉथ, कॉटन, वूल और एनीथिंग अराउंड देम टू मेक देयर नेस्ट। अब बात उठती है कि घोंसला जहाँ बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? द प्लेस वेयर बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इज कॉल्ड नेस्टिंग प्लेस। उसको बोलते हैं बच्चों nesting place. Birds usually choose trees and branches as nesting place, but sometimes man-made structures such as tube light, holes in the walls, ventilators and even cups of ceiling fan, they are also used as nesting places. आपने देखा होगा कभी कभी स्पैरो, जो गौरैया होती है, वो हमारे घर के अंदर आके, जो हमारा सीलिंग फैन होता है, इसके ऊपर का जो कप होता है, उस कप के अंदर अपना घोंसला बनाने लगती है। Let's have a discussion on the nests of different birds seen around us. एक एक करके डिस्कस करेंगे। First, we talk about a beautiful bird that is the tailor bird. ये आपको जो पिक्चर दिख रही है बच्चों, ये टेलर बर्ड की है। As the name suggests, tailor bird can stitch leaves together to make its nest. ये पत्तियों को आपस में सिल सकती है, ये लीव्स को आपस में सिल के अपने घोंसले का निर्माण करती है। For this, it uses its beak like a needle टू स्टिच लीव्स टुगेदर। पत्तियों को आपस में सिलती किससे है? वो निडल कहाँ से आती है इसके पास? जो इसकी बीक है वो बिल्कुल एक परफेक्ट निडल की तरह फंक्शन करती है। दैट्स वाई वी कॉल इट टेलर बर्ड। इसीलिए तो इसको टेलर बर्ड बोला जाता है। द बर्ड कीप्स इट्स नेस्ट वार्म एंड कोजी बाय लाइनिंग इट विथ कॉटन एंड ड्राइंग ग्रासेस। जो सूखी हुई घास या कॉटन होती है उसको ये फिर उन लीव्स के अंदर की तरफ रखती है, जैसे घोंसला अंदर से मुलायम भी रहे और थोड़ा गर्म भी रहे। नेक्स्ट इज ईगल। ईगल का घोंसला बच्चों एक कप की तरह होता है, एक बहुत बड़ा फैला हुआ कप, और ये जनरली बहुत लार्ज या टॉल ट्रीज के ऊपर या बहुत हाई प्लेसेस पर बनाया जाता है। द बर्ड पुट्स टुगेदर लार्ज स्टिक्स टू फॉर्म अ शैलो कप। बस लकड़ियाँ इकट्ठा की, एक कप की जैसी डिप्रेशन रहता है बीच में, एक घोंसले में ऐसे तैयार किया और उसके अंदर ही अपने एग्स को ले करती हैं। नाउ दिस इज द टर्न ऑफ वीवर बर्ड्स। बच्चों, ये ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेस्ट्स। A weaver bird builds a strong nest with grass and twigs. It pulls the grass in and out with its beak as it weaves the nest. ये बुनती है बाकायदा, इसलिए हिंदी में इसको बुनकर चिड़िया कहते हैं। ये इंग्लिश में वीवर बर्ड कहते हैं, जिसको बुनाई आती है। जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी बड़े लोग स्वेटर नहीं बुनते सिलाई लेके, उसी तरह से ये अपने घोंसले को बुनती है। और इसका घोंसला ना ट्री की ब्रांचेस पर लटका रहता है। द बर्ड एंटर्स
its nest through a tunnel-like opening at the bottom of the nest. आप गूगल करिएगा बच्चों ज़रूर, गूगल पे आप देखिएगा, लिखिएगा नेस्ट ऑफ द वीवर बर्ड, और अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे नेस्ट ऑफ द वीवर बर्ड तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह से मेहनत करके वीवर बर्ड अपने घोंसले का निर्माण करती हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वुडपेकर. याद होगा आपको, अभी कुछ स्लाइड्स पहले मैंने आपको बताया था कि वुडपेकर अपना नेस्ट कहाँ बनाता है, ट्रंक ऑफ ट्री. ये बहुत हार्ड वर्किंग बर्ड है बच्चों. A woodpecker uses his strong and pointed beak to make a hole in the tree trunk. आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर भी ट्री ट्रंक के अंदर एक गोल सा होल आपको दिख रहा है. ये नेचुरली नहीं था, ये उस वुडपेकर ने बहुत मेहनत करके अपनी बीक को ऐसे खट 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 कॉन्टीन्यूसली उस पर ऐसे चोट से अपने बीक से अपने प्रहार किए और इस तरह का एक घोंसले की शेप को उसने बना लिया. अब उसके बाद ये अपने घोंसले को अंदर से कंफर्टेबल बनाने के लिए इसमें लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े डाल देता है, जिससे इसके बच्चों को रहने में आसानी होती है. अब बच्चों बात कर लेते हैं हम पेंगुइन की. बहुत प्यारी सी बर्ड्स हैं. ये ऐसी जगह रहती हैं जहाँ यूजुअली इंसान नहीं रहते, और इनका नेस्ट वन ऑफ द सिंपल नेस्ट्स. पेंगुइन्स लिव इन द आइसी रीजन्स वेयर देयर आर नो प्लांट्स. कोई प्लांट नहीं है, कोई पौधे नहीं है. देन व्हाट डज अ पेंगुइन डू? कैसे बनाएगी भाई अपना घोंसला? अब ये कोई मटेरियल ही नहीं दिख रहा. जब इंसान नहीं रह रहे तो इंसान से रिलेटेड मटेरियल नहीं है, कोई पीसीज नहीं है, कोई और थ्रेड्स नहीं है, कोई पॉलीथीन नहीं है, और प्लांट्स भी नहीं है. तो ये क्या करती है, आप पिक्चर को ध्यान से देखिए. ये जो पेंगुइन इस समय बैठी हुई है अपने नेस्ट के ऊपर ही बैठी हुई है. इट कलेक्ट्स and puts a few pebbles and stones together on ice free ground to make a nest. उस बर्फ़ वाली जगह पर कुछ ऐसी जगह इसको मिल जाती है जहाँ पे रॉक हो, जहाँ पर बर्फ़ ना हो, स्नो ना हो. उस जगह पर ये छोटे छोटे पेबल्स को, छोटे छोटे पत्थर को इकट्ठा करती है और एक गोल सी शेप बना देती है और उसमें अपने एग्स ले करती है, उसमें अंडे देती है. उस बाउंड्री से ये फ़ायदा रहता है कि इसके जो एग्स हैं वो रोल अवे नहीं होते, लुढ़क कर बाहर की तरफ नहीं गिरते, और चूंकि नीचे आइस भी नहीं है तो मेल्टिंग का खतरा भी नहीं रहता. और इस तरह से ये अपने एग्स को इंक्यूबेट करती है, उन पर बैठती है. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आ गया बच्चों अब आपके इस चैप्टर का, केयरिंग फॉर द यंग वंस. जैसे हमारे पेरेंट्स बच्चों हमारी पूरी देखभाल करते हैं ना, हमारी हर रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. मोस्ट बर्ड्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. देखिए, आफ्टर अ मदर बर्ड लेज एग्स, both the parents take turn to sit on the eggs to keep them warm. बर्ड में बच्चों क्या होता है, वो एग्स को ले करते हैं और फिर उन एग्स को ना बॉडी वार्मथ की ज़रूरत पड़ती है. जो मदर है या फादर है वो अपने अपने टर्न से आएंगे और एग्स को इस तरह से ढककर घोंसले के अंदर अपनी बॉडी से बैठ जाते हैं. वो अपनी बॉडी की हीट उन एग्स को ट्रांसफ़र करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन. याद रखिएगा बच्चों, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन. अब इंक्यूबेशन चलता रहेगा तो कुछ दिन बाद क्या होगा, उन एग के अंदर से बच्चे बाहर आएंगे. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैचिंग. क्या बोलते हैं बच्चों, हैचिंग. अब चाहे एग्स हों चाहे छोटे बच्चे हों, उनकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है माँ बाप के सामने. तो बोथ द पेरेंट्स दे ट्राई वेरी हार्ड टू कीप देयर एनिमीज अवे फ्रॉम द नेस्ट. उनको हर तरह के शत्रु को घोंसले से दूर रखना पड़ता है और मम्मी पापा को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. जब बच्चों का जन्म हो जाता है तो भी माता पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बिकॉज जो यंग वंस हैं ना, जो चिक्स हैं, दे टेक टाइम टू ग्रो फेदर्स, लर्न टू फ्लाई एंड फाइंड देयर ऑन फूड. अपना खाना भी खुद नहीं ढूंढ सकते वो, उनके पंख भी अभी पूरी तरह से नहीं आए. बहुत सारी स्पीशीज़ में तो उनकी आइज़ भी बंद रहती हैं, क्लोज्ड रहती हैं. तो मीन्स दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स फॉर देयर फूड, प्रोटेक्शन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स. तो मम्मी पापा जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते, अपना ध्यान खुद रखना नहीं सीख जाते, उनको खाना भी देते हैं, उनको सुरक्षा भी देते हैं. एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, एज सून एज द यंग फ्लाई ऑफ द नेस्ट, द पेरेंट्स ऑल्सो लीव दिस नेस्ट एंड मेक अ न्यू नेस्ट इन द नेक्स्ट ईयर. हमें लगता है ना कि चिड़िया घोंसले में रहती है, तो बच्चों ज़्यादातर बर्ड्स घोंसले के अंदर नहीं रहती. केवल ब्रीडिंग पीरियड में, जब उनके घोंसले बनाने का और एग्स ले करने का समय चलता है ना, उसी पीरियड के बीच बीच में वो घोंसला बनाती हैं. एक बार उनके बच्चे बड़े हुए और घोंसले से उड़ गए, फिर उनको भी घोंसले की ज़रूरत नहीं होती, वो उस घोंसले को छोड़ देती हैं. नेक्स्ट सीजन में जब दोबारा से उनको एग्स ले करने होंगे तो एक नए नेस्ट का फॉर्मेशन किया जाएगा. तो इट वॉज ऑल अबाउट द कंटेंट्स ऑफ योर चैप्टर ऑफ दिस बुक. आई होप कि मैं
इसको आपके सामने सही तरह से रख सका। बच्चों, अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2-3 बार और फिर कुछ दिन बाद एक बार फिर से देखना है। आपको इसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो इजीली समझ आ जाएंगे। स्टिल आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।